Namaste everyone. Welcome to the session. Today is session 11, 11, 11 of our immunoboosting. And we are in the fourth week of our series of immunoboosting where we are strengthening our lungs, we are learning to breathe better, and we are building our immunity. Alright, so I'm waiting for everyone to join. Hi Abu, thank you for joining in. And I'm very happy today. I had posted a reel on Instagram, and the same reel was also posted on Facebook. It was about yoga for anxiety and stress, which was designed by my friend Abu, who is online with me right now. So I'm happy and excited because that reel has more than 70,000 people who has viewed it. It has reached more than 17,000 people, and it has more than 300 likes, and it is a huge number for me, and I am really excited. I have uploaded the same reel on Insta as well. You can look out there, and yes, it is just booming on Facebook, and I'm very happy about that. Alright, so on that note, let us start our session. Sit with your back straight, shoulders relaxed, chin parallel to the floor, gaze focused at one point in front of you. And gently close your eyes. Focus on your breath. Observe your body from head to toe. And in case there is any stress or strain in any part of your body, relax your body completely. Now, observe your mind. And in case your mind is wandering, slowly bring it back to your breath and join it with your breath and observe your breath. Observe every inhalation and exhalation. In case your mind starts wandering, do not get into conflict. Simply
Gently bring your mind back to your breath and start focusing on your breath. Slowly bring your awareness towards your own self. Bring your awareness towards your surroundings. And gently open your eyes. Welcome back. Hello everyone for joining in. Hi Sonal. Hello Sudhir. Hi Aarti. Hello Rajesh ji. Hi Rita Ben. Thank you everyone for joining in. Alright, so now that we have centered ourselves, let us start with the exercises being in the present moment. 3 rounds of neck exercises each. Inhaling up. Exhaling down. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. एंड रिलैक्स. जहां है वहीं पर इनहेल कीजिए. एक्सेलिंग राइट. Inhaling back. Exhaling left. Inhaling back. Exhaling right. जितना पीछे जा सकते जाइए. Inhaling back. Exhaling left. जितना पीछे जा सकते जाइए. Inhaling back. Exhaling right. Inhaling back. Exhaling left. Inhaling back. And relax. Moving on to the shoulders. Interlock your fingers. हाथों को आगे की तरफ लेके आइए. जितना स्ट्रेच कर सकते करिए. और स्ट्रेच को मेंटेन करते हुए हाथ ऊपर और पीछे, जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए. एल्बोज को स्ट्रेट रखना है. नेक रिलैक्स्ड. नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है. एक्सेल करते हुए हाथ आगे. इनहेल करते हुए फिर से पीछे. नेक रिलैक्स्ड. एल्बो स्ट्रेट. चेस्ट में, हाथों में, साइड मसल्स में, हर जगह पर स्ट्रेच फील करना है. एक्सेल करते हुए हाथ आगे पास में ले आइए और पाम्स आउटवर्ड और स्ट्रेच कीजिए. हाथों को पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और पीछे ले जाएंगे. नेक रिलैक्स. नेक बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होगा, एकदम रिलैक्स्ड. हाथों को जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए.
एक्सहेल करते हुए हाथ आगे, एक और बार सांस लेते हुए हाथों को पीछे ले जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, स्ट्रेच फील कीजिए हाथों में, चेस्ट में, चेस्ट की साइड मसल्स में, हर जगह पर। रिलैक्स एंड हाथों को छोड़ दीजिए। वेरी गुड। अभी हम ब्रीदिंग मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे, उसके आसपास के मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे। हाथ आगे, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, स्ट्रेच कीजिए जितना ऊपर कर सकते हैं। पूरी कमर से, पेट से, पीठ से, हर जगह से बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए पेट को, कमर को, पीठ को। एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे एंड रिलैक्स। हाथ सामने, इनहेल करते हुए हाथों को एक्सपैंड करना है, जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए। चेस्ट मसल्स को एक्सपैंड कीजिए, नेक रिलैक्स। नेक पे अगर स्ट्रेच आ रहा है तो नेक को मूवमेंट देकर बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। एक्सहेल करते हुए हाथ सामने, इनहेल करते हुए स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए हाथ सामने, इनहेल करते हुए स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स एंड डाउन। हैंड्स ऑन योर साइड, साइड पे हाथ रखकर सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है और स्ट्रेच करना है जितना ऊपर खींच सके। एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे एंड रिलैक्स। ऑलराइट, ब्रीथ नॉर्मल। और अब हम इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग करेंगे। हैंड्स ऑन योर रिब्स, inhale, feel your ribs expanding. Exhale, feel your ribs contracting. Equal breathing के साथ करेंगे। Inhale 2 3, exhale 2 3, 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 inhale 2 3, exhale 2 3 and relax. Moving on to our clavicular muscles. clavicular muscles पे हाथ रखेंगे और आंख बंद करके पूरा ध्यान clavicular muscles पे। Inhale, experience your clavicular muscles expanding. Exhale, experience your clavicular muscles contracting. We'll do it with equal breathing now. Inhale 2
3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 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 3. Exhale, 2, 3. And relax. Breathe normal. Alright. तो हम लोगों ने अब तक ब्रीदिंग के 3 एस्पेक्ट्स को सीखा है. इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड होल्डिंग योर ब्रेथ. होल्डिंग योर ब्रेथ मतलब हम सांस लेते हैं और ब्रेथ को अंदर होल्ड करके रखते हैं, राइट? ब्रीदिंग का एक और एस्पेक्ट है, 4th एस्पेक्ट, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ योर ब्रेथ. मतलब पहले तो हम सांस लेते हैं, लेने के बाद सांसों को होल्ड करते हैं, उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं, उसके बाद एक्सहेलेशन के बाद सांस लेने से पहले पूरी खाली बॉडी को होल्ड करना है, सांस लेनी नहीं है. दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ योर ब्रेथ. ठीक है? सो वंस यू एक्सहेल, यू होल्ड without inhaling. You suspend your breath for few seconds and then you inhale again. लेकिन इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है जो होल्ड में अप्लाई होता है. सस्पेंशन के बाद एकदम गैस करके इनहेल नहीं करना है, एकदम नेचुरली इनहेल करना है. सो सिंस हम लोग आज पहली बार सस्पेंशन कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ 2 काउंट सस्पेंशन करेंगे. सो हमारा आज का ब्रेथ काउंट होगा 4 inhale, 4 hold, 4 exhale, 2 suspend. 4 inhale, 4 hold, 4 exhale, 2 suspend. Okay? So I hope I'm making myself clear. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. Alright? So शुरू करते हैं. बैक स्ट्रेट, क्रॉस लेग पे बैठ जाइए सुखासन में. शोल्डर्स रिलैक्स, चिन पैरेलल टू द फ्लोर. एक पॉइंट पे गेज कीजिए और आंखें बंद. हम ब्रेक के साथ करेंगे, बहुत ज़्यादा राउंड्स एक साथ नहीं करेंगे, डोंट वरी. लेट अस स्टार्ट. रेडी? कीप ब्रीदिंग. ब्रीथ नॉर्मल. एंड स्टार्ट. इनहेल 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. सांस लेते हुए 2, 3, 4. होल्ड करना है 2, 3, 4. सांस छोड़नी है 2, 3, 4. सस्पेंड करना है 2. सांस लेनी है 2, 3, 4. होल्ड करना है 2, 3, 4. सांस छोड़नी है 2, 3, 4. सस्पेंड करना है 2. इनहेल 2,
3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Suspend. 2. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Suspend. 2 and relax. Breathe normal. आई होप ये काउंट्स और 2 काउंट का सस्पेंशन सबके लिए कंफर्टेबल है. अगर कंफर्टेबल ना हो तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. अब जैसे सांसों को होल्ड करने के अपने फ़ायदे हैं, वैसे ही सांसों को सस्पेंड करने के अपने फ़ायदे हैं. फिज़िकल लेवल पे भी है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी है, मेंटल और इमोशनल लेवल पे भी है. इफ़ आई सिट एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर इट्स सिंपल. फिज़िकल लेवल पे या फिजियोलॉजिकल लेवल पे ये फ़ायदा है कि जब आप सांसों को होल्ड करके रखते हैं तो ऑक्सीजन को ज़्यादा टाइम मिलता है हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचने के लिए. इट कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर दैट यू हैव इनहेल्ड, और इससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बेटर होती है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है. और व्हेन ऑक्सीजन इनटेक जब बढ़ता है तो हम लोग ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, जो हमारी बॉडी को फिजिकली हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है और मेंटली भी हमें और हेल्दी रखता है, हमारे मूड को भी काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है. सिमिलरली जब हम एक्सेल करके होल्ड करते हैं, ब्रेथ को सस्पेंड करके रखते हैं, तो जितनी भी रेसिड्यूअल एयर अगर बच गई है तो उस रेसिड्यूअल एयर को कम्प्लीटली बाहर निकलने में मदद होती है. प्लस पूरे लंग्स को अच्छे से खाली होने का मौका मिलता है. तो जब हम सस्पेंड करने के बाद इनहेल करते हैं तो वो इनहेल और बेहतर होता है. एंड व्हेन यू इनहेल बेटर, यू होल्ड बेटर, यू एक्सेल बेटर. सो ये सारा एक विशियस साइकिल है विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है कि होल्ड अच्छा होगा तो एक्सेल अच्छा होगा, एक्सेल अच्छा होगा तो सस्पेंशन अच्छा होगा, सस्पेंशन अच्छा होगा तो इनहेल अच्छा होगा. और जब ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो हमारी हेल्थ फिजिकली, मेंटली हर तरह से अच्छी हो जाएगी. ठीक है, तो सस्पेंशन के ये फ़ायदे हैं. तो हम लोग एक और राउंड करेंगे पूरे ब्रेथ का. इनहेल, होल्ड, एक्सेल एंड सस्पेंड. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. Hi Kranti, thank you for joining in. Hello Kareem, thank you for joining in. Alright, ready? आंखें बंद करके बैठना है, ऑब्जर्व करने हैं अपनी सांसों को. नेचुरल रिदम जो है ब्रेथ का उसे ऑब्जर्व करते रहिए. And let's start. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4. Suspend 2. Inhale
2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Suspend. 2. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Suspend. 2. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. Suspend. 2. Sorry. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Suspend. 2 and relax. Sorry. Breathe normal. नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए और अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए कि आपके ब्रेथ में क्या फ़र्क आया है। क्या आप पहले से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग कर पा रहे हैं? क्या आपकी नेचुरल ब्रेथ पहले से ज़्यादा डीप, पहले से ज़्यादा स्लो, पहले से ज़्यादा लाइट हुई है? कीप ऑब्जर्विंग दैट। And gently open your eyes. All right. So I hope suspension of breath करके आपको अच्छा लगा हो. Okay. So now हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. We know how to do भ्रामरी प्राणायाम, so let us do it. Just before we start, हमें इस वीक का टॉपिक पता ही है, ग्रैटिट्यूड. आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कीजिए, प्रेफरेबली रात को सोने से पहले या सुबह उठ के सबसे पहले. रात को सोने से पहले इज़ अ गुड ऑप्शन. रात को सोने से पहले लिख लीजिए और हो सके तो सुबह उठ के सबसे पहले रात को लिखी हुई एंट्रीज को पढ़ लीजिए. तो पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या अच्छी बातें हुई है, उन सबको आपकी ग्रैटिट्यूड जर्नल में मेंशन करना है कि आज मेरे साथ ये हुआ तो थैंक गॉड कि मुझे ये ऑप्शंस मिले और मैं ये कर पाया. कभी कभी जब गॉड फॉरबिड कब कोई बहुत ज़्यादा बुरा दिन हो और हमें कुछ ना मिले, तो यू कैन ऑलवेज थैंक गॉड फॉर योर हेल्थ. यू थैंक द यूनिवर्स फॉर योर हेल्थ कि मेरी हेल्थ अच्छी है. यू थैंक द यूनिवर्स कि मुझे आज खाना मिला. यू थैंक द यूनिवर्स कि मेरे पास फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की प्रॉब्लम नहीं है. ये चीज़ों को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. सो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. बहुत ज़रूरी है, हमारा पूरा एटीट्यूड शिफ्ट करने में हेल्प करता है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है. बड़े बड़े लोग, बहुत फेमस लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड जर्नल्स लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं ताकि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे. सो बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र है सक्सेस का, हैप्पीनेस का, पीस का. इतनी सारी चीज़ें जब इन 10 मिनट के कंट्रीब्यूशन से मिल सकती है तो हमें ये 10 मिनट्स का कंट्रीब्यूशन अपने लिए करना चाहिए. सो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड आई वुड लव टू सी द पिक्चर्स ऑफ योर जर्नल्स. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. भ्रामरी, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड. आपको पता ही है सारे नुआंसेस. सो लेट्स स्टार्ट. Take a deep breath in and exhaling, do the humming sound.
relax, breathe normal. Feel the humming vibrations in your head. And when you feel comfortable, gently open your eyes. ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए एक और टिप, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अगर यू आर द काइंड ऑफ पर्सन लाइक मी जो 2-3 दिन लिख के छोड़ देगा कि हाँ ठीक है आज नहीं कल, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, आई एम वेरी गुड एट ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली एंड ऑल। पर मेरे अंदर एक और बुराई है कि मैं बहुत ज़्यादा कंजूस या मनी पैसे बचाने वाली या वैसा टाइप की पर्सन हूँ। तो अगर किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो चीज़ सीरियसली लेनी ज़रूरी हो जाती है, ये मेरा मानना है। तो व्हाट आई हैव डन टू मोटिवेट माई सेल्फ टू राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल इज़, मैंने एक डायरी खरीदी है जो 250 रुपीज़ की है। 250 रुपीज़ की डायरी इज़ लाइक, आई वुड नेवर इमेजिन इन्वेस्टिंग 250 रुपीज़ इन वन डायरी, क्योंकि अगर 40-50 रुपए की नोटबुक मिलती है तो 250 रुपीज़ की डायरी कोई क्यों खरीदे। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। पर फिर भी मैंने 250 रुपीज़ की डायरी खरीदी है और उसके साथ मैंने 5 अलग अलग कलर के पेन खरीदे हैं। सो टोटल 300 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए हैं खुद को ये बोल के कि ये 300 रुपीज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल के लिए। तो अब ये ग्रैटिट्यूड जर्नल 300 रुपये वसूल करने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम प्रिटी सक्सेसफुल एट इट। ये 300 रुपये काफ़ी वसूल हो गए, मेरी आधी से ज़्यादा डायरी भर गई है और ऑफकोर्स इसका क्रेडिट मेरी फ्रेंड को भी जाता है बिकॉज हम दोनों साथ में लिखते हैं तो एक दूसरे को पुश करते रहते हैं टूवर्ड्स राइटिंग इट। सो यस, थैंक यू क्रांति फॉर दैट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स जो आप लोग इम्प्लाई कर सकते हैं। एक फ्रेंड रखिए जिसके साथ आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। यू डोंट हैव टू शेयर आपने क्या लिखा है विथ योर फ्रेंड इफ़ यू डोंट वांट टू, पर महंगी डायरी खरीद लीजिए, फ्रेंड को बोलिए कि साथ में लिखेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए और साथ में लाइफ में पॉजिटिव, पीसफुल और सक्सेसफुल बनिए। सी यू टुमारो विथ मोर ऑन ग्रैटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी या, धन्यवाद।